ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕਣਕ ਔਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਦੀ 26 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। हे ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਲੇ ਬੁੱਧਵਾਨ, ਨਾ ਬਾਲੇ ਬਲਵਾਨ, ਨਾ ਬਾਲੇ ਕੁਲੀਨ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਭਈ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਭਈ ਬਲਵੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੇ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਾਜਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਜੋ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਰੀ ਖੁਦਾਵੰ, ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। तेरी दया सदा प्रभु बनी रहे। और तू अब सचमुच तू निर्बला नु चुनता है, तू प्रभु मूर्खा नु चुनता है प्रभु जी। आज दे वचन प्रभु जो तू मैं पढ़िया है प्रभु जी, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਡਿਆਈ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਲੈ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बैठ सकते हो सब जने। सो प्रभु का धन्यवाद करते, शुक्र करते हैं। पिछले समय दे विच, पिछले ऐतवार मैं थोड़ा तबीयत मेरी ठीक नहीं सी, इस करके मैं लाइव नहीं होया। अपने घर छोटी जी आपां इबादत कर ली सी, पर प्रभु का धन्यवाद होवे, शुक्र होवे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने सामर्थी हाथ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ और ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਤ ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਤ ਪਾਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ, ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ, रद्द की हुई चीज नूं लैंदा। सब बोले हालेलुया। और वो इस तरह इस्तेमाल करदा कि लोग सोच भी नहीं सकते कि इदां हो सकता है। हालेलुया। पूरी बाइबल पढ़ के देखो, प्रभु यीशु मसीह एक जगह ते पूरा आनंद होया, पूरा खुश होया। मती दे विच लिखिया वो खुशी दा बयान नहीं सी होदा, और उन्हें खुशी दे नाल अपने हाथ ऊपर चक्के और परमेश्वर दा धन्नवाद कीता, और उन्हें कहा हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करदा हां क्योंकि तू एक ज्ञान बुद्धिमाना उत्ते नहीं मूर्खां उत्ते प्रगट कीता। हालेलुया। परमेश्वर मूर्खां नूं चुन लेंदा है।
परमेश्वर रद्द किए हुए नूं चुन लैंदा है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना वचन मूर्खां दे उत्ते प्रगट कीता ताकि बुद्धिमान शर्मिंदे कीते जाण। हालेलुया। परमेश्वर वो काम करदा जिहड़ी सोच तो भी परे हुंदी, सोच तो भी परे हुंदी आ। परमेश्वर वो काम करदा है। हालेलुया। वो इंसान सोच नहीं सकता कि ये काम हो सकता या नहीं हो सकता। जिद्दां कि उदाहरण के तौर ते कि जदों परमेश्वर ने अपने बंदे मूसा नूं भेजिया और उन्होंने जदों परमेश्वर का बंदा मूसा उत्थे गया, अब बाद च डिटेल च जावांगे, वैसे एक उदाहरण दे रहा मैं, सब बोले हालेलुया। कि जद परमेश्वर का दास मूसा जदों आया इसराइलियां नूं छुड़ाउण वास्ते, घट्टो घट नबी ने उहदी गिनती दसी 20 लाख बंदा सीगा। 20 लाख ने टोटल किया, औरतां मिला के बच्चे मिला के टोटल 20 लाख इंसान सीगे। और उन्हां नूं जंगल दे विच लगी प्यास, जंगल विच प्यास लगी और वो पानी दे लई रोण लग पे कि सानू पानी चाहिदा, सानू पानी चाहिदा है। हालेलुया। और मूसा दे अगे बुड़बुड़ान लगे, हारून दे अगे बुड़बुड़ान लगे और कहन लग पे कि सानू पानी चाहिदा, सानू जंगल च मारना, तुसी ये करना वो करना, बहुत कुछ बोले मूसा नू। लेकिन मूसा जो है वो परमेश्वर दे अगे डिग्या। जदों परमेश्वर दे अगे जदों मूसा डिग्या, उस तो बाद सब बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा नू की क्या बोला, तू उस चट्टान दे उत्ते मार, जदों तू उस चट्टान ते मारेगा ते मैं उदों तेनू पानी देंगा। हालेलुया। एक बारी मूसा नू मारन वास्ते क्या, एक बारी मूसा नू बोलण वास्ते क्या। हालेलुया। पर मैं उत्थे दी गल करदा पिया, उत्थे जिथे मारिया दोवां वारी मारिया, लेकिन एक बारी बोलने वास्ते क्या, दूजी बार एक बारी मारने वास्ते क्या, दूजी बार बोलने वास्ते क्या। लेकिन मूसा ने उस चट्टान वाल वेख्या। नबी ने कहा जे सब तो ज्यादा सुक्की चीज हुंदी है ते वो चट्टान हुंदा है। चट्टान बड़ा सुक्का हुंदा है। हालेलुया। ये हुण सोचन तो बाहर है। जे मेरी जगह ते तुहाडी जगह ते कोई इस तरह कवे, परमेश्वर उन्हां नूं कवे कि तू इदां कर, चट्टान दे उत्ते मार, ते साडे वर्गा तुहाडे वर्ग की होवेगा, सोचेगा चट्टान चों पानी किदां आवेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं तुहानूं कहां, अगर परमेश्वर सानू कहे कि चट्टान दे मार, असीं मारांगे, क्योंकि सानू पता एक बारी पहला भी हो चुका है। हालेलुया, ये पहला भी हो चुका। लेकिन मूसा नूं परमेश्वर ने कहा उत्थे जा चट्टान दे उत्ते, जिथे कोई उम्मीद नहीं, कुछ भी नहीं, पानी निकल ही नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने जब कहता उत्थे जा, उत्थे सानू पता चट्टान मसीह यसू सी। आमीन। पहला करंथियां 10 अध्याय च लिखा वो चट्टान मसीह यसू सी। सब बोले हालेलुया। जिथे भैणों ते भरावो, जिथे कोई उम्मीद नजर नहीं आती, जिथे कोई भी उम्मीद नजर नहीं आती कि ये काम हो ही नहीं सकता, परमेश्वर वो काम करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। जिथे सुक्का हुंदा है, उम्मीद सुक जाती है, विचार सुक जाते ने। हालेलुया। सब कुछ सुक जाता है, परमेश्वर उत्थे काम करता है। सानू एक गल दा पता कि जदों चट्टान दे उत्ते मारिया 20 लाख बंदियां नू, किद्दां पानी दा टूटी वांगू नहीं चलिया, उत्थे पानी झरने वांगू निकलिया। आमीन। झरने वांगू निकलिया। हालेलुया। असी किद्दां कहंदे मसीह यसू सी, क्योंकि पौलुस ने भी कहा मसीह यसू सी। लेकिन सानू जदों प्रभु यीशु मसीह आया धरती उत्ते, उन्हें कहा जेड़ा मेरे तो पींदा है, मृत जल दे सोते ओदे विचों फुट निकलणगे। आमीन। और वो कदे भी प्यासा नहीं होवेगा। हालेलुया। कहणों ते प्रभु परमेश्वर ओ काम करदा जेड़ा कदे भी सोचन तो बाहर। हालेलुया। कदी सोच नहीं सकते सी कि चट्टान चो पानी आवेगा और इदा झरने वगे कि उत्थे 20 लाख बंदियां ने, इंसानां ने पानी कल्ला नहीं पीता,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਡਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰੇਕ ਬਵਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੇਰੇ ਮੁੱਢ 1000 ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 10,000 ਡਿੱਗਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਕਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਨਬੀ ਨੇ 1963 1965 ਮਲਕੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੈਪਚਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਯਹੋਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਮਨ ਫਿਰਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਯਹੋਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ, ਵਾਕਈ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੋ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੋ, ਬਸ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ, ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਲਾ ਲਓ 1963 ਨੂੰ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 1963 ਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? 54 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ, 55 ਸਾਲ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਜੇ 1963 ਨੂੰ ਜਾਂ 1965 ਨੂੰ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰੈਪਚਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 1963 ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, 1965 ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 54-55 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੜਾ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ, 15 ਸਾਲ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਕਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ 1963 ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 55-56 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 54 ਸਾਲ ਉਹਨੇ 55 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ। 50 ਸਾਲ ਦੀ ਜੁਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜੁਬਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
अगर तुसी कहंदे कि पर मेरे को ये काम नहीं हुंदा, मेरे को ये होना नहीं, मेरे को होना नहीं, क्यों नहीं होना? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अगर तुसी कलीसिया काल किताब पढ़ो, ओदे च एक बंदा परमेश्वर दा, ओदा नाम पोलीकोपर है। पोलीकोपर ओदा नाम है। परमेश्वर ने अगर मैं थोड़ा जिहा पढ़िया, नबी ने दसिया कि ओदियां दो भैणां सीगियां, नाल ओ आप सी। उस समुंदर दे किनारे ओ मतलब कि घूम रहे सी, लेकिन समुंदर दे डाकुआं ने उन्हां नूं चुरा लिया, उन्हां नूं चक के लै गए। भैणां दा तां कुछ पता नहीं लगा, नबी ने कहा, लेकिन वो पोलीकोपर जिहड़ा सी वो एक सौदागर दे कोल बेचिया गया, उन्होंने बेच दिता गया। और जदों वो बेच दिता गया, जिहड़ा ओहदा मालिक सी ओहदे सूरां दा काम सीगा। जदों मैं तुहानूं दस्सण लगा, जदों इंसान अपने मन च ठान लवे कि परमेश्वर मेरे नाल आ, ते वो कुछ भी करन दी सामर्थ रख सकता है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। सो मैं तुहानूं दसना चाहता कि जदों ओ सूरां दे, जो सूरां नूं मतलब कि जिहड़ा बेचदा मालिक सी, उन्हां को बेचा गया पोलीकोपर। पर नबी ने दस्सिया कि परमेश्वर ने ओदे नाल गल कीती, ओदे हिरदे नाल। परमेश्वर ने ओदे दिल नूं चेंज कर दिता। जदों परमेश्वर ने ओदे दिल नूं चेंज कीता, ते भैणों ते भरावो पता की होया? ओ गुलाम सी, लेकिन हुण ओदे दिल च आ गया कि मैं यहोवा परमेश्वर दा काम करना है। सब तो पहला और जानदा नठन दा कोई तरीका नहीं सी, पर ओ उस मालिक दे कुत्ते भी सीगे। ओ कुत्तियां नूं ट्रेनिंग दिंदा सी, कुत्तियां नूं ट्रेनिंग दिंदा सी, और लोग खरीदण आंदे सी कुत्ते। और उसने की कीता, पोलीकोपर ने कुत्तियां नूं सिखाया, और कुत्तियां नूं यह सिखाया कि देखो जदों तुसी बेच दिते जाओ और जहाज विच जाओ, कुत्तियां दा जिहड़ा लीडर सी, हालेलुया, कुत्तियां दे लीडर नूं ने सिखाया, तू गल सुन मेरी, जदों तुसी जहाज 'च बैठन लगोगे, मालिक तुहानूं खरीद के जहाज 'च बैठन लगोगे तुसी, ते तू इदां करी, तुसी सारे बह जाइयो, पर तू किश्ती विच जाके फिर वापस आ जाई। तू खलारा पा दी उत्थे, और जदों तैनूं लोग फड़न आणगे, उदों मैं किश्ती विच दौड़ के लेट जावांगा। हालेलुया। और बाकी कुत्तियां नूं कहा कि देखो मैं जदों लेट जावां ते तुसी मेरे उत्ते लेट जाइयो, मैं दिखा ना किसे नूं। सब बोले हालेलुया। मैं सोचदा सी, बड़ा हैरान हो रहा सी, बहुत परेशान हो रहा सी कि कुत्ते नूं किद्दां ट्रेनिंग दित्ती गई, ऐदां दी ट्रेनिंग किद्दां दित्ती गई? क्यों कुत्ते ओदी गल समझण लग पे? क्यों कुत्ते ने ओदी गल नूं मन्निया? क्योंकि यहोवा पोलीकोपर दे नाल सी। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। सो मेरे भैणों ते भरावो, मैं तुहानूं ये दसना चाहना कि फिर की होया जदों कुत्ते विक गए, सारे कुत्ते जहाज 'च बढ़न लगे। और जिहड़ा लीडर सीगा, लीडर जिहड़ा कुत्ता लीडर सी, वो बाहर आ गया, वो बाहर खलारा पाण लग पिया, वो जा ही नहीं रहा सी, मैं नहीं जाना। और सारे जिन्हें उन्हें कुत्ते नूं फड़न वास्ते बाहर आए, ते पोलीकोपर जाके किश्ती 'च लेट गया, बाकी कुत्तियां ने उन्हें ढक लिया। हालेलुया, बाकी कुत्तियां ने उन्हें ढक लिया। और बाद चो पोलीकोपर ने दस्सिया सी कुत्ते दे लीडर नूं कि मैं इदां दी चीख मारांगा, जब मैं इदां दी सीटी मारांगा ते तू फिर आ जावीं। फिर उन्हें सीटी मारी, ते कुत्तियां दा लीडर फिर किश्ती विच आके बह गया। देख रहे हो तुसी कि परमेश्वर दा काम करन दा तरीका कितना जबरदस्त है। हालेलुया। उन्हें किसी राजे दी नहीं मंगी सहायता, उन्हें किसी सरपंच दी सहायता नहीं मंगी, उन्हें किसी लीडर की सहायता नहीं मंगी, उन्हें किसी बिशप की सहायता नहीं मंगी, उन्हें किसी नूं कुछ नहीं कहा। यहोवा ने जब उन्हें निजी गल कर लीती सी ते परमेश्वर ने उहदे मन च पाया कि कुत्तियां नूं ट्रेन करदा। आमीन, हालेलुया, कुत्तियां नूं ट्रेन कर। हालेलुया। और जदों वो भी कुत्ता भी आके बह गया, और उहदे कोल किन्नी दूर जाके नबी दसदे ने कि किन्नी दूर जाके जदों किश्ती काफी दूर आ गई, उस तो बाद उन्हें इदां दी सीटी मारी, उन्हें दस्सिया सी मैं सीटी मारूंगा ते तुसी फिर आपस विच किश्ती च लड़ पईओ,
किश्ती विच तुसीं झगड़ा करियो, किश्ती च अपना बस खलारा पा दियो। सब बोले हालेलुया। फिर उन्हें जही सीटी मारी, कुत्ते जहाज च लड़न लग पे और पोली को ऊपर दिस पिया। और उत्थे दे बाकी बंदे ने कहा कि ये इदां कुत्ते बस विच नहीं आने, जे कुत्तियां नूं कोई बस विच कर सकदा ते फिर यही इंसान कर सकदा है। हालेलुया। मेरा दसन दा मतलब यह आ कि पोली कोपर ने अपनी समय नूं पहचान लिया। उन्हें अजिहा काम किया पवित्र आत्मा के द्वारा कि कुत्तियां नूं ट्रेन कर दिता। भैणों ते भरावो, मैं पूछना चाहना, कुत्ते ट्रेन जे हो सकते हैं तां की इस युग दे विश्वासी आत्मा के द्वारा ट्रेन नहीं हो सकते? और सब कुछ कर सकते हैं। जो कुत्तियां नूं ट्रेन कर सकता है ते फिर साडे वर्गियां नूं इंसानां नूं क्यों नहीं तैयार कर सकते? कुत्ते ओदी गल समझ के पोली कोपर दी ते अज असीं पवित्र आत्मा दी गल नूं समझ नहीं सकते कि वो सानू बार बार कह रहा कि समा अपने समय नूं पहचानो, अपने दिन नूं पहचानो, अपनी बुलाहट नूं पहचानो कि तुहानू इस मैसेज दे विच कद भी लिआंदा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने सद्दे ते ध्यान देवो। फिर उन्हें जाके जो रोला पै गया, उन्हें कप्तान नाल गल की। कप्तान क्रिश्चियन सी। हालेलुया। कप्तान क्रिश्चियन सी। उन्हें फिर ओनू जाके अपनी जगह ते मंजिल ते पहुंचा दिता। सब बोले हालेलुया। उन्हें फिर परमेश्वर का काम किया। मतलब कहने का भाव आ कि परमेश्वर छोटियां चीजां नूं लैंदा है, छोटियां छोटियां चीजां नूं लैंदा ताकि वो वड्डियां नूं शर्मिंदा कर देवे। अनपढ़ां नूं लैंदा ताकि पढ़िया लिखिया नूं शर्मिंदा कर देवे। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। सो भैणों ते भरावो, मतलब मेरा कहने का भाव आ कि परमेश्वर हमेशा सादगी दे विच छुपिया हुंदा है। इन्नी कि सादगी विच छुपिया हुंदा कि लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि इहदे विच परमेश्वर छुपिया होया। लोग कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि लोग उच्ची उच्चियां गल्लां सोचते आ, वड्डियां वड्डियां गल्लां सोचते आ, लेकिन यहोवा जिहड़ा है छोटी जी गल नूं चखदा है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। सो प्रभु दा धन्नवाद करदे, शुक्र करदे मेरे भैणों ते भरावो। अगर तुसी बाइबल दे विचों देखो कि जदों धरती उत्ते जल परलो लैके आना सी, परमेश्वर ने धरती दा नाश करना सी, लोकां दा नाश करना सी, उदों परमेश्वर ने नूह नाल गल कीती और नूह नूं इह कहा कि गोफर दी लकड़ी दी किश्ती बना। जेदे कदी इंसान दे सोच विच नहीं आ सकती गल, इंसान दे मन विच इह गल नहीं आ सकती कि गोफर दी भी किश्ती बना दी जावे। गोफर दी लकड़ी जेड़ा ओदा कोई मुल नहीं सी, ओदी कोई पहचान नहीं सी, ओनू कोई भी मतलब कि पसंद नहीं करदा सी, लेकिन यहोवा ओनू पसंद करदा जिन्नू संसार रद्द कर दिंदा। हालेलुया। आज भी ओदा वही तरीका है। उन्हें नूह नूं क्या गोफर दी लकड़ी, हो सकदा नूह ने भी सोचा होवे प्रभु गोफर दी लकड़ी, अपने मन च सोचा होगा उन्हें, पर लेकिन यहोवा दे अगे कुछ बोल नहीं सी सकदा, क्योंकि यहोवा जब बोलता है ते सारे चुप कर जाते हैं। हालेलुया। उन्हें सोचा, क्यों मैं सोचदा कि क्योंकि लोकां ने नूह नूं ये गल कही कि गोफर दी लकड़ी, वाकई इहदा दिमाग की हो गया, खराब हो गया। परमेश्वर दे लोकी, परमेश्वर दे लोग, परमेश्वर दे बच्चे लोकां दे लई मूर्ख ही ने, मूर्ख ही ने। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। पर लेकिन सानू ये गल दा पता है कि परमेश्वर हमेशा संसार दे मूर्खां नूं चुनदा है। परमेश्वर हमेशा संसार दे रद्द कीती हुई चीज नूं लैंदा है। उन्हें जदों गोफर दी लकड़ी नूं लिया, हालेलुया, हालेलुया, उन्हां नूं की पता सी कि अगे काम होना की है।
ਨੂੰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਕੋ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਫਰ ਦੀ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੋਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜੇ, ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦੀ, ਕੀ ਬਣਾ, ਲੇਪ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਲੇਪ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਗਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਪ ਦੇਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਛੂ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਪੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲਿਪੀ ਗਈ ਗੋਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਾਲੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਗਵਾਨ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਪ ਕਰ ਦੀ। ਔਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਲ ਵੀ ਠੋਕੋ, ਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਠੁਕੇਗਾ, ਬਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਲ ਲੇਪ ਨੇ ਬੰਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਪਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਪਰ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਬੰਪਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੋਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਕੋੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਰੱਦ ਕੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਚ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਇਸ ਗੋਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੋਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਗੋਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਲਿੱਤੀ, ਲੋਕ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਚੇ। ਇਹ ਸੇਵਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੋਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੋਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਲਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਪਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਪੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਪਰ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਝੁੰਡ ਦੇ ਝੁੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮਸਾ ਇੱਕ ਆਂਦਾ
मसा ही एक आंदा। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। बहुत घट लोग आंदे मैसी दे विच, सच्चाई दे विच बहुत लोग घट आ रहे हैं, लेकिन बाहर देखो मिशना दे वल अज ट्राली भर के आ गई, कल ट्रक भर के आ गया, फिर बस भर के आ गई। इन्नियां बसां सी 10-15 होर वधा रहीआं, लोकी बड़े वध रहे ने, तूड़ी हमेशा वधदी है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। मैं नबी दे संदेश चो पढ़ रहा सीगा, उन्हें कहा जो जंगली मैं जड़ा प्रचार करना सी जंगली बूटी दे उत्ते और कणक दे उत्ते प्रचार करना सी, बीजां दे उत्ते, लेकिन परमेश्वर ने माइंड मेरा मतलब कि रात को चेंज कर दिता, तो मैं कहा चलो सादा जा करते हैं। हालेलुया, कि जंगली बूटी ते कणक दे बारे नबी ने सानू चंगी तरह समझाया, और नबी दस रहा है कि जो बीज बीजा गया हुण बीजन दा नहीं, हुण पक गई है कणक, हुण कणक पक चुकी हुई आ, हुण भी लोकी बाटियां कर रहे ने। सब बोले हालेलुया। जो कणक पक जाती, जो कणक उगदी आ पक जाती आ, और जे जब तक वड्डी ना जावे ते कणक वधदी नहीं, कणक नहीं वधदी, कणक सगों और पक जाती धुप नाल, कणक धुप नाल पकदी आ, लेकिन जंगली बूटी वधदी आ। जंगली बूटी हमेशा वधदी आ, लेकिन कणक उत्थे ही खड़ी रहंदी आ, पर होर पक जांदी आ। हालेलुया। इस करके कणक वध नहीं रही, कणक उत्थे दी उत्थे आ, लेकिन इन्हां सतावां दे नाल, इन्हां माहौलां दे नाल कणक पक रही आ। हालेलुया, हालेलुया। इन्हां दिनां दे विच ओ गेम देखो किदां घुम जानी आ। मैं गल कर रहा सी गेम घुम जानी आ। किस तरह गेम घुम जानी कि कोरोना वायरस ने इन्ना वर्ल्ड दा इन्ना मतलब कि मंदा हाल कर दिता, पूरे वर्ल्ड दा इन्ना मंदा हाल कर दिता, हरेक देश रो रहा है, हरेक देश की आर्थिक मंदी डूब रही है, हरेक देश कर्जाई हो रहा है। सब बोले हालेलुया। कोरोना वायरस का मतलब ही है परमेश्वर कोई ना कोई काम करना, परमेश्वर अपने प्लान के नाल काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा अपने प्लान का काम करता है। एक कोरोना वायरस छोटा जा आया है जिन्ने पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड की आर्थिक मंदी के सट मारी आ। अमेरिका रो रहा है, इटली रो रही है, सारे देश रो रहे ने। क्यों? क्योंकि इन्हें सारा काम ठप कर दिता, कोई काम धंधा नहीं, लोग घर च बिठा देते हैं और आर्थिक मंदी खत्म हो गई है। बहुत ज्यादा लोकी देश कर्जाई हो जाने हैं। किसी ने गल कर रहा सी, मैं कहा इंडिया 10-15 साल पीछे चल जाना हूं। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। ये लोग देख रहे कोरोना वायरस नू, लेकिन एक छोटे झुंड नू पता काम हो की रहा है, छोटे झुंड नू पता काम हो की रहा है। जब सारा वर्ल्ड कर्जाई हो जाना और आर्थिक मंदी ने थले चल जाना, इन्होंने अपनी बड़ी मां को जाना। हालेलुया, हालेलुया। कोई है जिन्हें सब चीजों को कंट्रोल च कर लेना, सारे देश कंट्रोल च कर लेने, सारे धर्म कंट्रोल च कर लेने और एक आवाज छड़ देनी, आओ हम सब एक हो जाएं। इत्थे आना काला घोड़ा जिन्हें तकड़ी बड़ी हुई है, जो इन्हें लेन देन करनी है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। सब मतलब कि घोड़े इकट्ठे हो चुके हैं, जिदा प्रचार सुन रहे सी, सब घोड़े इकट्ठे हो गए, उन पीला घोड़ा हो गया है। इन्हें सारे नू एक कर लेना है। स्थिति देखो कितना घूम रही है भैनों ते भरावो, समा होर नहीं गा, समा होर नहीं। आओ असी भी एक मन होइए और यहोवा लगे घुटने टेकिए और यहोवा नू कहिए, प्रभु तू जल्दी आ जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो धन्यवाद कर दे परमेश्वर ने समा लिया है, इदा समा लिया कि यह छोटे झुंड जाग उठ। साडा जागन का समा है, असी एक मन होइए, एक चित होइए, दुआवां करिए,
सब बोले हालेलुया। वो एक छोटे जे झुंड उत्ते एक प्रैशर पैण वाला है। हुण एक प्रैशर पवेगा जब सब धर्म एक हो जाएंगे, सब चीज़ां एक हो जाएंगियां, मिशनां सारियां एक हो जाएंगियां। भैणों ते भरावो, फिर एक छोटा झुंड सीन दे उत्ते आवेगा। सब बोले हालेलुया। सो ये वड्डियां वड्डियां चीज़ां जिहड़ियां ने परमेश्वर, लोग वड्डियां वड्डियां चीज़ां नूं वेखदे आ, लेकिन परमेश्वर छोटी जी चीज़ नूं लैंदा। हालेलुया। सो परमेश्वर ने जदों ये गल कीती, एक बारी परमेश्वर ने मूसा नूं चुनिया धरती ते। क्यों आया मूसा? क्योंकि मूसा अपने लोकां नूं छुड़ाउण वास्ते आया सी, ताकि अपने लोकां नूं छुड़ा सके, अपने लोकां नूं गुलामी चों छुड़ा सके, अपने लोकां नूं छुड़ा के उस पहाड़ उधर जंगल वाल लै जावे, पहाड़ वाल लै जावे, ताकि वो यहोवा अपने परमेश्वर की उपासना करन। किहदे को छुड़ाण गया सी भला? मूसा किहदे को छुड़ाण गया सी भला? फिरौन को, मिस्र दा राजा। पूरी धरती दी पावर सी ओ, पूरी धरती दी पावर सीगी ओ, ओनू कोई हिला नहीं सकदा सी। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੋਪ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਰਸ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। और उन्हें किन्ने इस्राएल नूं गुलामी विच रखिया होया सी, उन्हां को काम करवा रहा सी। लेकिन जदों इस्राएलियां ने यहोवा दे अगे रोया, पूरा इस्राएल रोया, यहोवा ने ओदी सुनी और सुन के यहोवा धरती उत्ते उतरिया, मूसा दे कोल उतरिया, बलदी होई झाड़ी दे विच। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। सानू पता कि जिहदे कोल मिस्र दे विच एडे वड्डे हथियार सीगे, एडे वड्डियां चीज़ां सीगियां, लेकिन जब मूसा नूं परमेश्वर दमिश्क दे राह मलकी मूसा नूं झाड़ी बलदी हुई झाड़ी दे विच मिलिया ते मूसा झाड़ी नूं वेखण वास्ते गया। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। परमेश्वर ने कोई भी हथियार नहीं उन्होंने दिता, परमेश्वर ने जो दे कोल सी, जो दे कोल सी। इस करके गिदोन को जब स्वर्गदूत आया गिदोन को, गिदोन नूं कहंदा कि तू चल, तू छुड़ा। उन्हें कहा जे परमेश्वर साडे नाल आ ते अजीब अचंभे चमत्कार किथे आ? उन्हें कहा देख तू जा, तू इसे जोर दे नाल, इसे बल दे नाल जो तेरे विच है, इसे जोर दे नाल तू इस्राएलियां नूं छुड़ा लवेगा। आमीन। हालेलुया। मूसा दे कोल जो चीज सी भैणों दे भरावो, जो चीज ओदे हाथ विच सी, उसे दे नाल परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में की आ? उन्हें कहा टांगा सुट दे, और सप बन गया। उन्हें फड़ लिया, फिर टांगा बन गया। उसे टांगे दे नाल मूसा ने एक टांगे दे नाल मिस्र वाल चला गया। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। भैणों ते भरावो, जी अज यहोवा साडे कोल आ जावे, यहोवा सानू दर्शन देवे और यहोवा सानू कहे कि तू उन्हां नूं छुड़ा, मेरे लोकां नूं छुड़ा जिहड़े मिशनां दे विच फसे पए ने, जिहड़े जथेबंदियां विच फसे पए ने, तू उन्हां नूं छुड़ा। ते अज जे ओ कहे कि तेरे हाथ विच की आ, तुहाडे हाथ विच की आ, तुसीं की जवाब दोगे? हालेलुया। जे मैनू पूछे भी तेरे हाथ विच की आ, मैं कहूंगा मेरे हाथ विच संदेश है, मेरे हाथ विच वचन है। उन्हें कहना है इसे वचन दे नाल तू मेरी लोकां नूं जेहड़े मिशनां च फसे आ उन्हां नूं कढ के लेके आ। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। जदों परमेश्वर दे दास मूसा ने यहोवा दी गल्लां सुनियां, हालेलुया, जदों यहोवा तुहानूं इस्तेमाल करन ते आ गया ते तुहाडा कोई बहाना नहीं चलना। हालेलुया। कोई नीगा मेरे को बोल नहीं हुंदा, मैं पढ़िया लिखिया नीगा, मैं इदां मैं उदां, ते यहोवा ने कहना मैं अनपढ़ा नूं ही इस्तेमाल करदा है। सो को जेडे पढ़े लिखे मैं उन्हां दी बुद्धि भ्रष्ट कर दिंदा है, उन्हां दी पढ़ाई मैं खत्म कर दिंदा है,
सब बोले हालेलुया। हुण मूसा ढांगा चक्या और जा रहा है, अपने बच्चों को बिठाया गधी दे उत्ते और मिस्र अपनी पत्नी नूं लिया। भैणों ते भरावो, इत्थों तक कि वो अपनी पत्नी नूं नहीं ले जा सकता सी, अपने बच्चे नूं नहीं ले जा सकता सी नाल, अपनी पत्नी नूं नहीं ले जा सकता सी नाल, जा सकता सी कि नहीं? लेकिन उन्हें उन्होंने छड़ दिता और अपने भरा फिरौन नूं लैके गया। हालेलुया। हारून नूं सॉरी फिरौन दे कोल लैके गया, हारून नूं फिरौन दे कोल लैके गया। और जदों जा रहा सीगा, गधी नूं फड़ के लैके जा रहा सी गधे नूं, ते किसी ने पूछा चाचा किधर जाना? क्योंकि पिंडां दे चाचे ताए चलदे इदां ही, रिश्तेदारियां छेती गंढ लैंदे आ। शहरां दे विच पिंडां च रिश्तेदार नाल दे बंदे नूं गवांढी नूं चाचा कह देना, ताया कह देना, रिश्तेदारी इंसान छेती रिश्तेदारी गंढ लैंदा है। हालेलुया। पर मैं कहा चाचा किधर नूं जा रहा? दाढ़ी उड़ रही सी बुढ़े दी, 80 सालां दा बुढ़ा, झुंडियां पईयां और बड़े तरीके नाल जांदा पिया। उन्हें चाचा किधर जा रहा? उन्हें कहा मैं मिस्र वाल अटैक करन जा रहा, मैं मिस्र च अपने लोगों को छुड़ान जा रहा। वो कहता चाचा ठीक आ तू, तेरे कोल है ही की ढांगा? लोग उन्हें मजाक करते सी, लोग कहते ढांगे ना छुड़ाऊंगा फिरौन दे कोलों, इसराइलियां नूं ढांगे ना छुड़ाऊंगा। उन्हें बड़ा मुस्कुरा के कहा, उन्हें कहा ना तलवार दे नाल, ना बल दे नाल, ना शक्ति दे नाल, ना पावर दे नाल, ए मैं छुड़ान चला यहोवा दे आत्मा दे नाल। हालेलुया। यहोवा दे आत्मा दे द्वारा असीं किसे नूं भी छुड़ा सकते हैं जिहड़ा यीशु प्रभु ने चुनिया होया है। हालेलुया। हुण बड़े ध्यान नाल सुनियो कि जदों ये गया वड्डे हथियारां दे विच, वड्डियां तोपां दे विच, तलवारां दे विच, बरछियां दे विच, जदों सारियां दे विच गया, नाल फिरौन नूं लै गया, फिरौन दे कोल चला गया, हारून नूं नाल लैके गया। जदों दोवें भरा जा रहे ने, हालेलुया, वो पिछड़े होए सीगे भरा पिछड़े होए सीगे, वो अपनी जगह ते रह रहा सी, भज्या होया सी, भरा पिछड़े होए। लेकिन भैणों ते भरावो, संदेश ने इन्हां मिला दिता। हालेलुया। उधरों फिरौन, उधरों हारून नूं मैसेज मिलिया, इधरों मूसा नूं मैसेज मिलिया। ये दोवें सीन दे उत्ते आ रहे आ। किन्ने मिलाया दोवां नूं? यहोवा दे संदेश ने। आज सानू कौन मिला रहा भरावां नूं? यहोवा दा संदेश। मैसेज ही भरावां नूं मिला रहा है, मैसेज ही भैणां नूं मिला रहा है। जदों कोई इस तरह की गल हुंदी ते मैसेज सानू जवाब दिंदा है कि अपने दुश्मनां नाल भी प्यार करो। जिहड़ा भरा नूं प्यार नहीं करदा, यीशु नूं किद्दां प्यार कर सकदा है? ये मैसेज सानू एक कर रहा है। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। ये दोवें जणे जा रहे हैं, हथियार इन्हां दे कोल कुछ भी नहीं, दोवां कोल ढांगे ही आ बस। तुसीं दसो जिथे तोप होवेगी ढांगा की करेगा? हालेलुया। जिथे जिथे तोप उथे ढांगा की करेगा? जिथे नेजा है उथे ढांगा की करेगा? जिथे तलवार है उथे ढांगा की करेगा? जिथे तीर कमान है, जिथे पूरी वर्दी पाई हुई आ, सब बोले हालेलुया, पूरी वर्दी पाई आ, उथे ढांगा की करेगा? लोकां दी सोच। लेकिन फिरौन कोलों ना डरिया मूसा, क्योंकि उन्हें पता सी पहला मूसा उहदे कोलों ही भज्जिया सी। लेकिन हुण भज नहीं रहा, हुण फिरौन दा सामना कर रहा, क्योंकि वो मूसा नहीं सी। हुण मूसा च यहोवा सी, परमेश्वर दा वचन सी। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। जिदा मैं दस्या गोफर दी लकड़ी नहीं सी, क्योंकि राल दे नाल लिपी हुई सी।
सब बोले हालेलुया। सो जदों मूसा ने जाके क्या कि यहोवा दी प्रजा नूं छड्ड दे, यहोवा दी प्रजा नूं छड्ड दे, इस्राएलियां नूं छड्ड दे, मेरे भाइयों नूं छड्ड दे, क्योंकि यहोवा यूं फरमांदा है कि इन्हां नूं छड्ड दे, ये जाके जंगल विच मेरी की करन जी, उपासना करन, मेरी भगती करन। उन्हें कहा नहीं छड्डांगा, करना जो कुछ करना। फिरौन ने कहा नहीं छड्डांगा, तू वही आ जिहड़ा तू भज्जिया सी, तू वही है जिहड़ा तू भज्जिया सी। आ गया 40 साल बाद मेरा मुकाबला करने लई, तेनू पता नहीं मैं कौन आ, फिरौन आ, फिरौन। लोग मेरा नाम सुन के डर जाते, फिरौन। हालेलुया हालेलुया। उन्हें कहा तू भावें फिरौन आ, भावें जिहड़ा मर्जी आ, हालेलुया, तू धरती का राजा होगा, तेरे कोल धरती दी पावरां होणगियां, लेकिन जिहड़ा मेरे नाल आ वो धरती और आकाश का राजा है। आमीन। जिहड़ी हजूरी च मैं रह रहा वो तेरे नालों ज्यादा सामर्थी है। हालेलुया। उन्हें कहा कौन है तेरे नाल, मैं नहीं छड्डदा, क्योंकि देख नहीं रहा सी मेरा राजा किसी नूं दिखदा नहीं गा। हालेलुया। देखो कि फिरौन ने अपने सेना दे विच, अपने राज दे विच वड्डियां वड्डियां गल्लां सोच के रखियां, वड्डियां वड्डियां गल्लां सोचियां, तोपां, बंब, तीर कमान, बरछे, तलवारां, हालेलुया, कड्डियां कड्डियां वड्डियां पावरां रखियां पईयां। लेकिन जदों मूसा ने कोई पावर छड्डी, मूसा ने पावर छड्डी, कदी ने सोचा नहीं होएगा फिरौन ने कि इदां दी भी पावर आ जाएगी। मूसा ने मक्खियां छड़ दित्तियां, छोटी जी छोटियां छोटियां मक्खियां। जो छोटियां छोटियां मक्खियां आईयां कि वो तीरां नाल मक्खियां नूं मार दे, कि बंब छड़ दे ओदे वल, कि जीना हराम कर दिता। तुसीं सोच के दसो कि मक्खी बंदी किथे है? गंदियां चीजां दे, मक्खियां हमेशा गंदियां चीजां च बंदियां, और जादियां मक्खियां झोंपड़ियां च जाणगियां, जादियां मक्खियां छोटे छोटे कच्चे कच्चे घरां च जाणगियां। नैनां च मक्खियां कित्थों जांदियां? हालेलुया, सब बोले हालेलुया। ला लो, दो बंदे गल्लां करदे उत्थे, एक फिरौन दा बंदा है मिस्री और दूजा इस्राएल दा है। इस्राएल बेचारे गुलामी विच, कपड़े ना धोते, ना लेना ना देना, एक नौकर है। उधर फिरौन दा सिपाही है, उन्हें वधिया कपड़े पाए और वधिया पावर, पूरा सब कुछ टॉप टाप पाया। और एक बंदा उत्थे इस्राएली खड़ा, ओदे बेचारे दे गंदे कपड़े आ, वो बेचारा बड़ा मतलब कि मिट्टी च लिपड़िया होया है। मक्खियां आईयां, हो सकता मक्खियां आईयां ओदे कोलों दी लंघियां होणगियां, और मक्खी ने इस्राएली किसे बंदे नूं कोई तंग नहीं कीता। हालेलुया। उत्थे दो बंदे खड़े होणगे, एक पूरे कपड़े गंदे सीगे, एक दे साफ सीगे। मक्खी ने गंदे कपड़े वाले नूं कुछ नहीं कीता, साफ कपड़े वाल जा रही है। हालेलुया हालेलुया। साफ कपड़े वाल जा रही, ओदे आले दुआले घूम रही, ओ करदा ऐदां दा करदा होवेगा। लेकिन वो सोचदा होगा भी मेरे उत्ते काहदे लई आ रही है, ये भी तो लागे खड़ा ही, इन्हू क्यों नहीं मक्खी सता रही है? सब बोले हालेलुया। ओ मक्खियां ज्यादा गंदगी च बहंदियां ने। हालेलुया। और मैं सोच रहा सी मक्खियां नूं बनाने वाला यहोवा है। हालेलुया हालेलुया। पर जेड़ियां मक्खियां आईयां सी यहोवा ने घल्लियां सी, यहोवा ने उन्हां मक्खियां दा माइंड चेंज कर दिता सी। जिदा लोग उपरलापन वेखदे आ कि कपड़े सोहणे आ, वधिया वधिया पढ़िया लिखिया अमीर आ, वधिया हुणे दे पिछे चल जाओ, ए साडी हेल्प कर दू, कुछ दे दू सानू। हालेलुया हालेलुया। लोकी अज जांदे इधर, पेंशन लग जूगी, राशन लग जूगा महीने का,
हालेलुया, सब बोले हालेलुया। लेकिन मक्खियां दा माइंड यहोवा ने चेंज कर दिता और मक्खियां को भी पता लग गया बाहरलापन नहीं देखना, बाहर के कपड़े नहीं देखने, अंदर देखना गंदगी की तरह। साफ कपड़ियां दे विच फिरौन दी सेना दे अंदर गंदगी सी, लेकिन इधर गंदे कपड़ियां दे विच यहोवा ने उन्हें चुनिया होया सी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मक्खियां भी उधर ही जा रही महल वाल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिरौन बड़ा तंग हो गया, उन्हें मिन्नतां कीतियां जान देवांगे, जान देवांगे। बाद च फिर मन ढीठ हो गया, कहना नहीं जान देवांगा। हालेलुया, हुण मैं मूसा ने दूजी पावर छड्डी, डड्डू आ गए। डड्डू किधर जाते हैं? है ना, डड्डू गंदगी वाल भजदे आ, वो भी गंदगी वाल भजदे, चिक्कड़ वाल भजदे आ, गंदगी वाल भजदे आ। झोंपड़ियां वाल डड्डू नहीं जा रहे, ये डड्डू झोंपड़ियां वाल नहीं जा रहे, ये डड्डू महल वाल जा रहे हैं। ये डड्डू महल वाल जा रहे हैं, छाला मारते हुए। हालेलुया, भैनों ते भरावो, इंसान जो सोचता है, क्योंकि बाइबल कहती जदों इंसान की सोच जिथों शुरू होकर खत्म होती है, जिथों खत्म होती है यहोवा की सोच उथों शुरू होती है। आज पूरा वर्ल्ड दुखी है, पूरा वर्ल्ड परेशान है। वड्डियां वड्डियां तोपां बनाईयां होईयां इन्होंने, बड़े बड़े बंब बनाए हुए इन्होंने, बड़े बड़े जहाज बनाए हुए इन्होंने, और किड्डियां वड्डियां वड्डियां ताकतां इन्हां दे कोल आ, लेकिन एक छोटी जी खांसी का इलाज नहीं लभ सके। कोई छोटी जी खांसी का, कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं लभ सके, इलाज नहीं लभ सके। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। एक छोटे जे कोरोना वायरस ने लोगों की वर्ल्ड की आर्थिक मंदी ते सट मार दी। अज लोग रो रहे हैं और छोटी जी खांसी का इलाज नहीं लभ सकते, क्योंकि छोटा जा काम है। हालेलुया, एडियां वड्डियां वड्डियां चीजां बना कर रख दित्तियां वर्ल्ड ने, पर छोटी जी चीज वो खोज नहीं कर सके। हालेलुया, हालेलुया। ये छोटी जी चीज आ जिहदा ये लभ नहीं सके इलाज। हालेलुया, क्योंकि यहोवा छोटी जी चीज नूं चकदा है। अपना प्लान पूरा करन दे लई, अपना मकसद पूरा करन दे लई, अपना उद्देश्य पूरा करन दे लई यहोवा कुछ भी करन दी सामर्थ रखदा है। हालेलुया, हालेलुया। अपना मकसद पूरा करन दे लई यहोवा शैतान नूं इस्तेमाल कर लेंदा है। हालेलुया, हालेलुया। जिदा मैं तुहानूं दस्सिया कि परमेश्वर ने कहा अहाब राजे नूं मार दिता जाएगा, ओदा लहू जिहड़ा कुत्ते चटणगे। यहोवा अपना वचन पूरा करन दे लई जदों स्वर्ग दर खुला सी और असीं देखदे स्वर्ग च मीटिंग हो रही सी, कोई कहंदा एडा भरमा, यहोवा कहंदा किद्दां राजे नूं भरमाईए। यहोवा पुछदा किद्दां भरमाईए राजे नूं, कोई इस तरह कहंदा, कोई इस तरह कहंदा, लेकिन एक झूठा आत्मा आया। बाइबल कहती एक झूठा आत्मा होया आया, कोई झूठा आत्मा कोई परमेश्वर का आत्मा नहीं सी, और झूठा आत्मा दुष्ट आत्मा सी। उन्हें कहा मैनू भेज, मैं भरमावांगा। उन्हें कहा तू भरमाव किद्दां भरमावेंगा? उन्हें कहा मैं झूठा आत्मा नबियां दे जीबां उत्ते बिठा दवांगा। हालेलुया, हालेलुया। भैनों ते भरावो, अपना मकसद पूरा करन दे लई, अपना उद्देश्य पूरा करन दे लई परमेश्वर शैतान नूं इस्तेमाल कर लेंदा है। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं तुहानूं दसना चाहना छोटी जी चीज का कोर्स नहीं बल्कि लभ सके, खांसी का इलाज नहीं लभ सके। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा छोटी चीज नूं चकदा है। आज पूरा वर्ल्ड आज शर्मिंदा। हालेलुया।
जद तक इलाज कटना तद तक आर्थिक बंदी किन्नी डुब जानी है ना दी। हालेलुया। पर उन्हें कहा है छोटे छोटे ना डर, जदों इदां दी स्थिति आवे, जदों तेरे ते प्रेशर पवे, तू अपनी अखां ऊपर नु चक्की, तेरा छुटकारा नेड़े ही है। आमीन। सब बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर छोटी तो छोटी चीज नु चकदा है, जिथे कोई हथियार काम नहीं कर सकता, जिथे कोई ताकत काम नहीं कर सकती। सानू इस गल दा पता है। हालेलुया। छोटी जी निशानी देता है यहोवा। मैनू गल चेते आ गई। हालेलुया। छोटी जी चीज नू निशानी नू देता है। हालेलुया हालेलुया। ए मैं उदा मेरे गल आ गई रहाब के बारे। आप सुनिया ना रहाब के बारे। रहाब ने जदों अपने घर उतारिया सी उन्होंने मसंजरा नू, 2 मसंजरा नू। हालेलुया। उन्होंने जाते वक्त उन्हें एक चीज दी सी, लाल रंग दा रिबन दिता सी। लाल रंग दा रिबन सी उहदे कोल। हालेलुया। और जदों यरीहो दे उत्ते अटैक कीता, मैं बहुत बारी दसिया, कड्डियां चोड़ियां चोड़ियां कंधा सीगियां, रथां दी रेस लग सकती सी उन्हां उत्ते। हालेलुया। ओ कितना टट गया। मैं कहूंगा बड़ी नगरी सी, ओ बड़ी नगरी कितना टट गई। बड़ा शहर कितना टट गया। कितना टठिया हो, कितना टठिया हो। यरीहो दी दीवारां कितना टठियां। सिर्फ पता करता का टठियां हो, सिर्फ हालेलुया दे नारे नाल। हालेलुया हालेलुया दे नारे दे नाल तुरियां जदों फूकियां। लोकी कई मजाक उड़ाते हालेलुया हालेलुया। पर भैनों ते भरावो हाले यरीहो दी दीवारां टुट गईयां। उत्थे रहाब सी। रहाब नू एक रिबन दिता गया लाल कलर दा, एक लाल कलर दा दिता गया। हालेलुया। ते यहोशुआ नू चेते आया। यहोशुआ नू कदे कोई गल भुलदी नहीं गी। अज भी यहोशुआ नू कोई गल भुलदी नहीं। यहोशुआ दा मतलब है छुटकारा देने वाला। अज भी साडे यहोशुआ नू कोई गल भुलदी नहीं गी। अज भी उन्होंने गल्लां चेते रहिंदियां ने। और यहोशुआ ने छेती 2 मसंजरां नू बुलाया और उन्होंने कहा छेती जाओ, जेड़े नाल तुहाडी मुलाकात होई सीगी। सब बोले हालेलुया। हमेशा मसंजर अगे रहिंदे आ। मसंजरां ने जिन्हां ने उन्होंने रिबन दिता सी, ओही जाके उन्होंने पहचान सके। यहोशुआ नहीं मिलिया सी उन्हां नू। भैणों ते भरावो सानू भी यीशु नहीं मिलिया। सानू यीशु नहीं मिलिया। साडे कोल भी कोई मसंजर आया, साडे कोल भी कोई संदेशवाहक आया। उन्हें ही सानू यरीहो दे विचों कढिया। उन्हें सानू एक मिशनल जथेबंदियां ते और ओदे विचों सानू कढिया है और सानू रिबन दे के गया। हालेलुया। लग रही समझ कि नहीं। एक रिबन दे के गया और उन्होंने जाके कहा देखो जल्दी जल्दी तू अपने लोगों को कढ ला। यहोशुआ ने गल कही, जेड़े तेरे घर दे अंदर रहणगे, जेड़े रिबन दे अंदर रहणगे, और सारे बचाए जाणगे। और जेड़ा रिबन दे अंदर जावेगा, घर दे अंदर जावेगा, उन्हां दा मैं जिम्मेवार होवांगा। उन्हां दा एक बाल भी नहीं होवेगा। लेकिन जेड़ा घर दे बाहर आ गया, रिबन तो बाहर आ गया, ओदे असी जिम्मेवार नहीं गए। असी ओदे कोई जिम्मेवार नहीं गए। जेड़ा घरों बाहर निकले असी ओदे जिम्मेवार नहीं गए। सो मेरे भैनों ते भरावो, अज दा रिबन की आ? अज दा रिबन एक संदेश है। इस संदेश दे विच असी रहना है। इस संदेश दे घर दे अंदर रहना है। और आज साडा यहोशुआ प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जेड़ा रिबन दे अंदर है, जेड़ा संदेश के अंदर है, ओदा मैं बाल बिंगा भी नहीं होन दवांगा। हालेलुया आमीन। हालेलुया। पर शर्त है घर दे अंदर रहना है।
शर्त है रीबन दे अंदर रहना है। हालेलुया हालेलुया। रीबन किहनू दिता गया सी? रहाब नू रीबन दिता गया सी। रहाब की है? रहाब एक दुल्हन का नमूना है। रहाब साडा नमूना है। इस करके इस युग दे विच एक छोटे जे झुंड नू यह संदेश दिता गया है। हालेलुया हालेलुया। इस करके रहाब प्रचार कर दिया, रहाब लोकां नू गवाहियां देंदी आ, रहाब लोकां को जांदी आ और उन्हां नू कहंदी आ रीबन दे अंदर आ जाओ। लहू है, प्रभु यीशु मसीह दा लहू है और लहू जेड़ा इस युग दा संदेश है। हालेलुया हालेलुया। जेड़ा इस किश्ती च आ जावेगा वो बचाया जावेगा, जेड़ा किश्ती चो बाहर है वो मारिया जावेगा। सो मेरे भैनों ते भरावो, बड़ी हैरानी वाली गल है कि परमेश्वर कितना छोटियां छोटियां चीजां नू चकदा है और फरोह नू, पढ़ी लिखी कौम नू उन्हें शर्मिंदा कीता है। हालेलुया। सब बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो मूसा जब उन्होंने छुड़ा के लेके आया, कोई पुल बनाया नहीं, उन्हें पुल नहीं बनाया। उन्हें जब लाल समुंदर अगे आ गया, कोई पुल नहीं बनाया जिथे सारे दे माइंड ठप हो गए, सारे दे माइंड सुन्न हो गए, सारे दे विचार खत्म हो गए। लाल समुंदर वेख के हालेलुया, पीछे फिरौन दी सेना है, आसे पासे पहाड़ ने और सामने समुंदर है। सारे दे सोचां ठप हो गईयां, सारे दे विचार ठप हो गए। हुण तां पुल भी नहीं बनाया जा सकदा सी। छेती छेती पुल बना दी, एडा वड्डा पुल भी नहीं बनाया जाना सी। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। लेकिन यहोवा ने मूसा नू कहा अपनी बाह पसार ले। तू जब अपनी बाह पसारेगा ते मैं यहोवा यिरे विचों रास्ता देवांगा। मैं यहोवा हां, मैं राह ते सच्चाई मैं हां, जीवन मैं हां, मैं रास्ता देवांगा। भैनों ते भरावो, जिद्दां ही मूसा लंघदा पिया सी उदों दी फिरौन दी सेना आ गई। सानू इस गल दा पता है कि यहोवा अग दा खंभा उन्हां नू रस्ते च रोक रहा सी। जेड़ा मूसा नाल गल्लां कर रहा सी, जेड़ा मूसा नाल गल्लां कर रहा सी, वो दवा दवा क्यों दी जाके पीछे चला गया। फिरौन दी सेना नू रोकिया। इधरों सारी सेना, समुंदर दे दो फाड़ हो गए, कंध वांगू इधर, कंध वांगू इधर, दोवें कंधा वांगू खड़े हो गए और रस्ते के पीछे यहोवा मतलब कि उन्हां नू रोक रहा सी और सारी सेना निकल गई। हालेलुया सब बोले हालेलुया। फिर यहोवा उन्हां नू छड्ड गया फिरौन नू। फिर फिरौन दी सेना भी आ गई और फिरौन चीका मार मार के कह रहा सीगा एक झूठा नबी है मूसा, एक झूठा है, एक झूठे ने, क्योंकि सानू ये हुणी प्रचार करके गए कि परमेश्वर एक का। सानू हुणी कह के गए कि परमेश्वर एक का। इत्थे दा तीन ने अग दा खंभा इत्थे सी, दो कंधा इदां लगियां होईयां सी। उन्हां नू भुलेखा लग गया, कहंदे परमेश्वर दा तीन आ। ये सबूत भी आ गए आ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। हालेलुया हालेलुया। पर जब मूसा उत्थों दी लंघ के गया, इधर पासे लगियां सी। बाइबल दसदी, पढ़ के देखियो कि जो परमेश्वर के दास मूसा ने अपनी बाह फेर पसारी, पानी मतलब कि समुंदर अपने पहले वाले जोर दे नाल गया। जो पहले वाले जोर दे नाल मिस्रियां नू पानी दे विच घबराहट मारी ते परमेश्वर ने कहा परमेश्वर तीन नहीं, परमेश्वर एक है।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ਅੱਜ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਮਰੋੜਦੇ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। मूसा वर्गा नबी सानू दिता गया। सब बोले हालेलुया। मूसा वर्गे नबी ने प्रचार किया कि परमेश्वर एक है। लेकिन आज मिशना फिर रौला पा रही ने, तीन पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने, ये है वो है। परमेश्वर फिर अपने पहले जोर नाल आवेगा जो दुल्हन चक ली जाएगी। हालेलुया। इन्हां दिनां दे विच परमेश्वर दी लाड़ी हुण अपनी एक्शन च आने वाली आ, अपने जोर च आने वाली आ, अपनी पावर च आने वाली आ। यहोवा दे आत्मा दे नाल ओ पूरे जोश नाल आने वाली आ। ओनू पता कि माहौल किदां दा चल रहा है। भैणों ते भरावो सानू सीरियस होना पैना है। सानू सीरियस होना पैना है। सानू व्याकुलता दे विच जाना पैना है। सानू घुटनियां ते आना पैना है। सानू एकता दे विच आना पैना है। सानू विश्वास दे विच आना पैना है ताकि असी एक मसा दे थल्ले आ जाइए। और जब असी एक मसा दे थल्ले आवांगे यहोवा सानू धरती तो ऊपर खिंच के ले जाएगा। हालेलुया हालेलुया। जदों एक भी चुनिया होया जिहड़ा रह गया, जिस वेले संदेश विच आ गया उस वेले ही रैप्चर हो जाएगा। उस वेले ही परमेश्वर दा मसा साडे ते आवेगा। उस तो पहला एक घटनावां घटणगियां, सब लोग एक हो जाणगे, सब मिशना एक हो जाणगियां, सब सारे पासे एक हो जाएगा और वो कहेगा आओ हम सब एक हो जाएं। हालेलुया। सब बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नबी ने कहा सब एक थां ते इकट्ठे हो जाएंगे। नबी ने इस गल नूं कहा, उन्हें कहा हरेक जेड़ी जंगली बूटी एक जगह ते इकट्ठी हो रही है। उन्हें कहा जंगली बूटी एक जगह ते इकट्ठी हो रही है और ओदे कूड़े बन्ने जाणगे। जंगली बूटी दे कूड़े बन्ने जाणगे क्योंकि वो एक जगह ते इकट्ठी हो रही है। और यहोवा प्रभु यीशु मसीह अपने दाणियां नूं पड़ोले च पा के ले जावेगा। हालेलुया हालेलुया। भैणों ते भरावो बहुत सारी गल्लां मैं अजे तुहाडे नाल करनियां सीगीਆਂ कि एक शहर नूं घेर लिया, पर मैं यही प्रचार आपां अगे नूं रखांगे। सो प्रभु तुहानूं बहुत आशीष और बरकत देवे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुहानूं बहुत बरकत देवे, आशीष दे। सब नूं जय मसीह दी। हालेलुया 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 हालेलुया। सो प्रभु दा धन्यवाद करदे हैं, शुक्र करदे हैं। आओ असीं सब प्रार्थना करदे हैं, एक दूजे लई प्रार्थना करदे हैं। और जब मैं प्रार्थना करन जा रहा हां ते कोई भी बीमारी है, कोई भी परेशानी है, भैणों ते भरावो अज भी यहोवा ओही है जो इत्थे है, ओही तुहाडे कोल आ। इस टाइम तुहाडे कोल इत्थे तुहाडे नाल खड़ा है, तुहाडे घरां दे विच है, तुहाडी संगति दे जदों इकट्ठे होए पे आ। क्योंकि जिथे लिखिआ 2 या 3 इकट्ठे हुंदे आ यहोवा दा आत्मा उन्हां दे विच आ जांदा है। प्रभु उन्हां दे विचकार हाਜ਼ਰ हो जांदा है। स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करदे हां तेरियां भलाइयां और वफादारियां लई, तेरी कृपा दे लई प्रभु यीशु मसीह, तेरे रहम दे लई प्रभु यीशु, तेरे तरस लई प्रभु यीशु मसीह, तेरे ईमान दे लई, तेरे भरोसे लई प्रभु यीशु मसीह, तेरे विश्वास लई तेरा धन्यवाद करदे हां। प्रभु अज भी तू प्रभु यीशु मसीह मूर्खां नूं चुनदा है ताकि बुद्धिमानां नूं शर्मिंदा कर सके। प्रभु तेरा धन्यवाद करदा हां, तू कमजोरां नूं चकदा है ताकि प्रभु बलवान जिहड़े ने उन्हां नूं तू शर्मिंदा कर सके। तेरा धन्यवाद करदे हां, शुक्र करदे हां जो माहौल प्रभु चल रहे ने, प्रभु इन्हां माहौलां दे विच भी तू अपने बच्चियां नूं, अपनी बच्चियां नूं अपने आत्मा दे नाल तगड़ियां कर रहा है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करदे हां, तेरा शुक्र करदे हां प्रभु जी। किस तरह तू वड्डियां वड्डियां चीज़ां नूं फेल कर दिता, छोटियां छोटियां चीज़ां नूं लिया और वड्डियां चीज़ां नूं तू फेल कर दिता। अज भी तू ओहियो परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हाँ प्रभु जी। मेरी बेनती प्रार्थना है जो भैन भरा अपने सिरां नूं झुका के बैठे ने या खड़े ने प्रभु यीशु मसीह, तू उन्हां नूं बहुत बरकत दे, आशीष दे प्रभु जी। उन्हां दे दुख तकलीफां परेशानियां बीमारियां लाचारियां कलेशां नूं
दूर कर दे मेरे स्वर्गीय पिता, उन्होंने दया कर दे प्रभु यीशु मसीह। और मेरी बेनती है प्रभु जी, इस माहौल दे विच, इस समय दे विच जो चल रहा है प्रभु यीशु, तू अपने लोगों का ताबा लै प्रभु जी, तू अपने लोगों नूं वेख प्रभु जी, उन्हां दी सारियां जरूरतां लोड़ां पूरियां कर मेरे स्वर्गीय पिता। तेरे स्वर्ग दे विच किसी चीज का घाटा नहीं प्रभु जी, तू हरेक दी जरूरत लोड़ नूं ख्वाहिश नूं पूरा कर दे जो तेरे वचन के आधार पे है। कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है, प्रभु यीशु तेरा आत्मा उन्हें टच करे और उन्हें शांति ना भर दे, उन्हें चंगियाई दे दे प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी ओ प्रभु उन्हें हलीम कर, उन्हें शुद्ध कर और सारियां जरूरतां लोड़ां पूरियां कर। तेरा धन्यवाद करते हाँ आज दे वचन दे लई, 100 गुना फल लैके आवे प्रभु जी। तेरा नाम मुबारक होवे, तू मैनू इस्तेमाल किया, तू मैनू चंगा किया, सारी महिमा तेनू दिंदे आ, सारी वडियाई तेनू दिंदे आ, तेरे नाम नू उच्चा करदे आ। मैं अपने भरावां लई, अपनियां भैणां लई जो मेरे तो दूर ने प्रभु जी, लेकिन तेरे नजदीक आ, तेरे नेड़े आ। बेशक असी शरीर तो दूर आ, लेकिन तेरे आत्मा दे विच असी एक मन हाँ, एक जान आ, एक चिंता प्रभु जी। जिथे भी मेरे भरा ने भैणा ने प्रभु जी, जो तू मैनू दिते सबना लई और बाकी तमाम भैणा भरावां दे लई सारिआं नूं प्रभु बरकत दे, आशीष दे, सामर्थ दे, प्रभु अभिषेक दे, ताकि तेरे वचनां नाल प्रभु जुड़े रहन, हरेक मुश्किल दे विच तेरे नाल जुड़े रहन, धन्नवाद दियां भेटां दिंदे रहन और सारी महिमा तेनू मिल जाए। तेरा नाम उच्चा होवे। सब चीज़ां तू अपने हत्थां च लै, साडी प्रार्थना सुनिया कबूल कीता, प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, आमीन। सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दी कृपा, ओदी दया, ओदा रहम, ओदा फजल, ओदा तरस होन तो लैके हमेशा हमेशा तक ओदे चुने हुए विश्वासी भैणा भरावां उत्ते, बच्चों बजुर्गों उत्ते, सेवकां संतां उत्ते हुंदी रवे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब भैणा भरावां जय मसीह।